हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप खुदाम। आज खुदाम फिर से हम तेरी हुजूरी में आए हैं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तुझे ऊंचा करें अपनी जिंदगियों से, अपने घरों से, अपने बदनों से। और खुदावन तू हमेशा खुदावन हमारे जिंदगी में जलाल पाता रहे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज तेरी हजूरी के लिए, तेरे आने के लिए कि खुदावन तू यहाँ पे मौजूद है। खुदावन तेरा तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। खुदावन पाक रूह तेरे पूरे होल्ड में इस पूरी मीटिंग को देते हैं। जहां जहां भी हम बैठे हैं खुदावन खुदा तेरे फरिश्तों को मांगते हैं, जितनी भी बदी की कुव्वतें खुदावंद इस कलाम को सुनने में, उसके ऊपर अमल करने से रोकती हैं, यीशु के नाम से हम सारी बदी की कुव्वतों को जहां जहां भी हम बैठे हैं अपने घरों से, अपनी जिंदगियों से निकल जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। आज जब खुदावंद तेरे कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए तो खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आए, हमारे दिलों में वो घर करे। किसी भी तरीके से अब्लीस इस तेरे कलाम को चुराने ना पाए यस्सु के नाम से। ना हम सिर्फ सुने इसके ऊपर, इस कलाम को, तेरे तेरे मुंह की बातों को, तेरे दिल की बातों को, बल्कि हम उसके ऊपर अमल करने वाले हों, ताकि उस पहले फलों में हम शामिल हो सके। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन जी। हम आज पैदाइश की किताब उसका 27 बाब जो है वो पढ़ेंगे। और जी कौन है मेरे साथ? मैं करूं बाजी? सिस्टर माया है और ओह अच्छा, सिस्टर्स रही है, ठीक है। माया भी नहीं आई जी और ठीक है जी हाँ मैं जी, पढ़ूं? हाँ जी, पूरा चैप्टर जो प्रेज है। जी 27 चैप्टर है। प्रेज द लॉर्ड। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾਓ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਰਥਾਤ ਧਨੁਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਲੈ ਅਤੇ ਰੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾਓ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਸਾਓ ਰੜ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਐਸਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਜੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ 2 ਚੰਗੇ ਮੇਮਣੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਜਾਂ ਤਾਵਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਮਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਾਪ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾਓ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਸਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਮਹੀਣ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ
ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਉੱਠੋ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਲੱਭਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੋਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਰਗੇ ਜਤੌਲੇ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੀ ਹੈ? ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੱਧ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੁੰਘੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਿਕਨਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾਈ ਤੋਂ ਦੇਵੇ। ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਸ਼ਿਕਾਰੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਠੀਕ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡੀ? ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਏਸਾਓ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਿਕਨਾਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਉੱਤੋਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਂਗਾ। ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ ਹਾਰਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਜਦ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਥੋਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾਂਗੀ।
ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੇਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਹੇਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤੀਵੀਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Praise the हम पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब काल पड़ा था, है ना, तो इसहाक जो है वो जरार के इलाके से वहां चला गया जहां खुदावंद ने उसके साथ फिर से बातचीत की, उसने कुर्बानगाह बनाई, है ना, और खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। तो ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और खुदावंद ने उसके साथ वो सारे वादे जो थे जो इब्राहिम के साथ किए थे, खुदावंद ने वो इसहाक के साथ किए। खुदावंद ने जैसे कह लें शख्सी तौर पे पर्सनल खुदावंद ने इसहाक से वादे किए, इसहाक से बात की, या इसहाक से वो अहद किया जैसे इब्राहिम के साथ किया था, है ना। पीछे हमने इस बारे में सीखा था कि बेशक खुदावंद ने इब्राहिम के साथ वादा किया, अहद किया, लेकिन खुदावंद ने कहा कि मैं इसहाक के साथ अहद बांधूंगा, है ना। तो और ये हमने इसमें पीछे सीखा था कि इसलिए खुदावंद ने जो इब्राहिम की सारी नस्ल थी उसके साथ वो अहद नहीं बांधा जो इसहाक के साथ बांधा, है ना, कि इसमें से एक जबरदस्त कौम जो है वो निकलेगी, जिसमें से हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह या दाऊद जो थे वो पैदा हुए, है ना, इसहाक की नस्ल से। और खुदावंद देखे शुरू से ही अगर हम देखें तो अलग करता जा रहा है ना। इस्माइल को अलग किया, इसहाक को अलग किया, फिर अभी हमने देखा कि असो और याकूब को अलग किया। फिर आगे हम देखेंगे कि खुदावंद और जिसके साथ खुदावंद अहद बांधेगा या जी ये जो वादा है ये पूरा करेगा, वो अलग होते जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये अलग अलग जो है रूहानी तौर पे जो खुदावंद की कह ले नस्ल है जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने हैं, उसको खुदावंद अलग करता जा रहा है। सॉरी। है वो इब्राहिम की ही औलाद है, लेकिन खुदावंद अलग करता जा रहे हैं। ये अलग अलग जो है वो होते जा रहे हैं, भाई भाई होते जा रहे हैं, है ना। इसलिए ये जो बात है ये आपने याद रखनी है। कभी भी ऐसी कोई बात हो, कोई आपसे कहे कि इब्राहिम की सारी नस्ल के साथ ही खुदावंद ने वादा किया था कि वो सारी बरकतें मिलेंगी, नहीं, जो वादा था वो वादे का फरजान जो था इसहाक था। इसलिए खुदावंद ने पर्सनल जो है वो इसहाक के साथ दोबारा से या कह लें उसके साथ भी अहद बांधा, है ना। उसके साथ पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि खुदावंद ने उसके साथ अहद बांधा कि मैं तेरी नस्ल को तारों की मानिंद बढ़ाऊंगा और तुझे ये सारा मुल्क, है ना, जो सारे वादे थे वो किए, है ना। और अभी हम देखेंगे कि इसहाक की जो आगे औलाद है जिसमें से याकूब और असौ पैदा हुए, पीछे हमने जब इनकी पैदाइश हुई तो हमने देखा था कि खुदावंद ने जब ये पैदा होने वाले थे तो खुदावंद ने रिबका जब खुदावंद के पास गई
लिखा हुआ है ना 25 बाब और उसकी 23 आयत में। तो खुदावन ने पहले ही बता दिया था कि जो बड़ा है छोटे की खिदमत करेगा, और खुदावन ने छोटे को चुना है। बरकत जो है खुदावन ने उसको दी है। खुदावन ने ये पहले ही रिबका को या इसहाक को कह लें बता दिया था, या रिबका के साथ खुदावन ने बात की थी। इस चैप्टर में देखते हैं कि जो इसहाक है वो बूढ़ा हो गया है, उसकी आंखें जो हैं धुंधला गई हैं, आंखें धुंधला गई हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो उसका विजन था, जो उसकी रोया थी, या जो कुछ खुदाम ने उसके साथ कलाम किया था, अगर इस सारे चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि खुदावन ने उसके साथ बातचीत की थी, रिबका को बताया था। तो ज़ाहिर है रिबका को जब बताया था कि मैं छोटे को बरकत दूंगा, छोटा जो है वो सरदार होगा, उसको बरकत मिलेगी, खुदावन ने ये कह दिया था, है ना। तो अ, जो इसहाक है उससे उसके ऊपर जैसे कह लें कि ईमान होना चाहिए था, भरोसा होना चाहिए था कि खुदावन ने बरकत तो जो है वो छोटे को दे दी हुई है, लेकिन लिखा है कि उसकी आंखें धुंधला गई थी। यानी जो खुदावन ने उसके साथ कलाम किया था वो वो कह लें कहीं मध्यम पड़ गया था। वो भूल गया था, कह लें जिस्मानी तौर पे वो सोचना शुरू हो गया, रूहानी तौर पे उसने नहीं फैसला किया। उसने जिस्मानी तौर पे कहें कि ये फैसला किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब जो है मेरे मरने के दिन हैं, तो मैं जो बरकत है, जो खुदा ने मेरे साथ वादे किए हैं, मैं वो आगे ट्रांसफर करूं, मैं आगे अपने बच्चों को और जैसे उस दिन भी हमने सीखा कि जो बड़ा बेटा होता था वो सरदार होता था, उसको डबल पोर्शन जो है वो मिलता था, जो भी बाप की जायदाद होती थी, जो भी हिस्सा होता था उसको मिलता था। तो इसलिए इसहाक ने उसी कह लें एक जो रवायत थी, या ये एक जो दस्तूर था वहां पे कि बड़े को बरकत जो है वो दी जाती है, जी दी जाती थी। उसने उसी तरह सोचा, क्योंकि उसकी आंखें धुंधला गई हुई थी। खुदावंद के जो रोया थी, खुदावंद ने जो उसको दिया थे वो हल्की पड़ गई थी या मध्यम पड़ गई थी। इसलिए उसने ये फैसला किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उसने बड़े बेटे को बुलाया। उसने देखे माँ के साथ भी, अपनी बीवी के साथ भी मशवरा नहीं किया, और उसने असो को बुलाया और उससे कहा कि मेरे लिए खाना तैयार करे, उसका जो पसंदीदा खाना है ना, और वो बना के लेके आए ताकि मेरा दिल खुश हो और मैं दिल से उसे दुआ दूं। इसलिए यहाँ पे एक जिस्मानी जो एक जो कह ले अमल है इसहाक ने किया। और उसने बरकत जो थी जो खुदावन ने पहले ही यकूब को दे दी हुई थी, माँ के पेट ही में जब था वो, तो खुदावन ने यकूब को बरकत दे दी हुई थी, चुन लिया था खुदावन ने, है ना। तो इसलिए ये खुदावंद की मर्जी के बगैर या खिलाफ ये काम होने जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो रिबका थी उसने ये बातें सुन ली, और उसने कह ले चुपके से प्लान बनाया कि ये बरकत जो है ये यकूब को मिलेगी, है ना। बरकत की लड़ाई हो रही है। जैसे हमने सीखा था कि माँ के पेट ही में वो दोनों क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, कोल करते थे सन, और जद्दोजहद हो रही थी, पलोठे की जो बरकत है। है ना।
کہ یعقوب جو ہے یا اسو میں لڑائی ہو رہی تھی ماں کے پیٹ میں ہی، تو اس لیے برکت کی ساری جنگ ہے۔ تو ربکا نے یعنی جو پلان ہے وہ بنایا اور اس نے بے شک کیونکہ یہاں پہ ذکر نہیں ملتا کہ اس کو یاد تھا، لیکن اگر یاد نہیں بھی تھا تب بھی اس نے خداوند کے پلان کو پورا کیا، ہے نا؟ کیونکہ ذکر نہیں ملتا کہ اس نے کہیں پورے چیپٹر میں کہا یا بتایا کہ وہ خدا نے تو یعقوب کو برکت دی تھی، ہے نا؟ تو یہ میرے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا یا مجھے بتایا تھا، ہے نا؟ یہ نہیں ذکر ملتا، اس لیے ہم اپنے سے ہی وہ میں کہوں گی کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسے یاد نہیں تھا، اس کو بھی یاد نہیں تھا، لیکن اس نے جو پلان بنایا اور خداوند نے اس پلان میں اس کا میں کہوں گی کہ ساتھ دیا، کیونکہ یہ خداوند کی مرضی کے مطابق کر رہی تھی ربکا جو ہے۔ اب ربکا جو یہاں پہ تیار کر رہی ہے یعقوب کو، اس کو ہم اپنے ساتھ کیونکہ اب ہم یعقوب کی نسل سے ہیں اور تو اس لیے اس کو ہم اس کو اپنے ساتھ کریں گے ریلیٹ، جوڑیں گے یا سیکھیں گے کہ ربکا جو ہے یہاں پہ خداوند پاک روح کا رول جو ہے ادا کر رہی ہے یا چرچ کا کہہ لیں ادا کر رہی ہے، جس طرح ہم نے سیکھا کہ جو وہ سارا تھی وہ عالم بالا کا جو نیو یروشلم ہے اس کی ماں ہے، اسی طرح جو ربکا ہے وہ بھی کہہ لیں کہ ہماری جو نیو یروشلم کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں یا نئے عہد کے جو ہم لوگ ہیں، ہماری وہ ماں ہے۔ تو اسی طرح جیسے چرچ ہمیں تیار کر رہا ہے، جیسے خداوند پاک روح ہمیں تیار کر رہا ہے، اسی طرح ربکا نے بے شک وہ یہ ایک جو یعقوب ہے اس کا کردار جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں سیکھا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دھوکے باز تھا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی سب ہمیں خدا نے چنا ہے، کب چنا ہے؟ جب ہم گناہ میں تھے، خدا یسوع مسیح نے تب ہمارے لیے جان دی جب ہم گناہ میں تھے، تب خدا یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا، تب خدا یسوع مسیح نے ہمیں اپنے لیے الگ کر لیا، ہے نا؟ تو اس لیے یعقوب کی بھی جو ایک نیچر تھی، جو فطرت تھی، خداوند نے اسے چن لیا اور خداوند یا خداوند پاک روح جو ہے وہ تیار کر رہا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا نے جو یعقوب کو تیار کرنا شروع کیا تاکہ وہ برکت پائے، وہ باپ کے سامنے جب حاضر ہو، باپ کے سامنے جب جائے تو جو تیاری چاہیے وہ اس نے کی، جیسے ہم نے دیکھا کہ اس چیپٹر میں کہ وہ کھانا جو تھا لذیذ کھانا اور اس نے تیار کیا، اور جو کھانا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے وہ کس چیز کو پیش کرتا ہے، خداوند کی مرضی کو پورا کرنا۔ اگر ہم انجنا پڑھنا متی کی انجیل نہیں سوری یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے بتایا، اور پھر رومیو جو ہے، ہاں جی پڑھنا، کہ ہم خداوند کا کھانا کیا تھا؟ جی یوحنا کی انجیل 4 34 باب، ہاں جی ਜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ہاں جی تو کھانا کیا ہے ہمارا بھی یا خداوند یسوع مسیح، کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ یہ بھی کھانا جو ربکا بنا رہی ہے وہ کس کی پسند کا بنا رہی ہے؟ اس کے باپ کی پسند کا بنا رہی ہے،
है ना, उसकी मर्जी का पूरा कर रही है, या उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो खाना बना रही है। और इसी तरह अगर हम देखें तो हम भी अपने बाप की, यानी खुदावंद बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, और जो जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए, वो ही काम हमें भी करने हैं, यानी उसकी कामिल मर्जी को पूरा करना है। और मर्जी को कैसे पूरा करते हैं? जब हम उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, जो उसने कवानीन बनाए हैं, जो उसने आइन दिए हैं। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अम, उसकी बात माननी, उसकी नसीहत को मानना, हुक्मों और कवानीन और आइन पर जो अमल करता है, असल में वो खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहा है ना? और फिर रोमियो 12 बाब उसके पहले जो आयतें हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि खुदावंद का पसंदीदा जो क्या खुदावंद को पसंद है, मैं पढ़ना अंजना। जी, जी। फर्स्ट वर्स रोमियो तो 12 बाब, हाँ जी। ਤੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ पूरी इच्छा की है। हाँ जी, आमीन। लिखा है पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ, यानी खुदावंद की जो पसंदीदा यानी खाना है, यानी कलाम है, या खुदावंद के हुक्मों पे अमल जो करना है, वो खुदावंद को पसंदीदा है। वो है खाना, यानी खुदावंद की मर्जी को पूरा करना। तो वो तैयार कर रही है रिबका जो है, और यकूब ने उसको लेके जाना है, लेकिन सिखा कौन रही है? रिबका उसको सिखा रही है या पका रही है ना? तो इसलिए इसी तरह हमें जो है खुदावंद पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें बताता है, वो हमें सिखाता है कि हमारे खुदा को, हमारे बाप को पसंद क्या है ना? जिस तरह रिबका जो है पका रही है, खाना जो है वो तैयार कर रही है पसंदीदा। इसलिए जो यकूब है उसने कह लें खुदावंद की जो मर्जी है उसको पूरा किया, और उसको वो कपड़े जो हैं वो पहनाए। यहाँ पे लिखा है कि नफीस लिबास जो है वो उसको पहनाया रिबका ने, है ना? तो जिस तरह हम सीखते हैं कि दुल्हन ने कौन सा लिबास पहना है, वो जो महीन कतानी, जो चमकदार, खूबसूरत, साफ, बेदाग जो है लिबास जो है वो पहना है। और वो भी क्या है? वो सारे क्या है? रास्तबाजी के काम। इसी तरह यानी जिस तरह हम देख रहे हैं कि याकूब को रिबका ने वो लिबास जो है वो पहनाया और उसको तैयार किया, और वो सारे जैसे उसके ऊपर वो बाल लगाए जो उसकी गर्दन पे, उसके हाथों पे जिस तरह के असौ के थे, उसने याकूब के लगाए, है ना? और ये जो बाल हैं, पीछे हमने शायद सीखा था कि ये जो हमारी कह लें सोचें या जज्बात या जो कुर्बानियाँ होती हैं, जो एक बदन के ज़रिए हम देते हैं, है ना? कि अपने बदन को हमने बचा के रखना है या पाक साफ रखना है, गुनाह से दूर रखना है ना? तो ये सारे हमारी जो बदन को एक किस्म का कह लें हमने पाक साफ रखना है, ये उसको पेश कर रहे हैं कि वो कुर्बानियाँ देनी है। बाल जो हैं एक किस्म का कुर्बानियों को भी पेश करता है, हमारी सोचों को, ख़्यालों को पेश करता है कि हमने उनको साफ रखना है, उनको अपने बदन को किसी तरीके से गुनाह में नहीं गिरना। इसलिए जिस्म पे ये जो बाल एक किस्म का देखा, वो उसके लगाए, और फिर उसको अम, उसमें से खुशबू आ रही है। उसके बाप ने देखा कि उसको जब उसने टटोला, उसको टच किया, उसको चूमा, तो उसमें से महक आ रही है ना? और
खुशबू आ रही है उसके बेटे की, है ना? तो ये भी हमने अगर देखें तो खुदा यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो हमारे अंदर से लिखा है कि जैसे आस्तर मलका को तैयार किया, ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात में हम पढ़ते हैं कि उसके अम ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात 4 बाब उसकी 10 आयत में कि तेरे अत्तरों की महक जो है वो उसको आती है, यानी हमारे महबूब को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को उसकी अपनी जो खुशबू है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा तो कुछ नहीं है ना, हमारे अंदर जो रास्तबाज़ी है, जो पाकीज़गी है, जो अच्छे काम हैं, वो किसके हैं? वो खुदावंद के हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। इसलिए उसको हमारे अंदर से अपनी खुशबू जो है, वो मिलती है। और इसी तरह बाप भी जब हमें देखता है, तो वो हमें नहीं देखता। जिस तरह ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात में ही लिखा हुआ है कि वो कबूतरी है। कबूतरी किस चीज़ को पेश करती है? पाक रूह को, है ना? कि खुदावंद पाक रूह हमें तैयार कर रहा है और वो जो सारी खुदा बाप में, क्योंकि ये हम सबको, हमारा सबका ईमान है कि खुदावंद पाक रूह, खुदावंद बाप, खुदावंद यीशु मसीह एक हैं। और अ, वो जो हमें तैयार कर रहा है खुदावंद पाक रूह, वो हमें नज़र आ रहा है। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वह लिखा है कि मेरी कबूतरी यानी पाकीज़ा, बेनज़ीर हमें वो देखता है। खुदावंद बाप जब हमें देखता है, तो उसको वो जो पाक रूह की जो तैयार कर रहा है, उसकी खूबसूरती, उसकी महक या उसका जो हुस्न है, वो नज़र आ रहा है ना? या उसकी खुशबू जो है अपने बेटे की, उसको उसमें से मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पे अम, कह लें कि रिबका जो है, वो उसको तैयार कर रही है, याकूब को, जिस तरह मुझे और आपको भी खुदावंद पाक रूह तैयार कर रहा है। अभी हम तैयार हो नहीं गए, हम सब जो हैं हमें चुना है, हमें खुदा ने हमारे साथ वादा किया है, अहद किया है, या हमारे पर पाक रूह की मोहर जो है वो लग गई है। जिस तरह याकूब को माँ के पेट ही से चुन लिया था, खुदा ने रिबका को कहा था कि मैं जो छोटा है उसको बरकत जो है वो दूंगा, है ना? तो खुदा ने उसको चुन लिया हुआ था, लेकिन तैयारी जो है अभी इसकी हो रही है। इसी तरह हम चुन लिए गए हैं, हम हमारे साथ खुदा ने वादा किया, मोहर जो है खुदावंद पाक रूह की लगी हुई है हमारे ऊपर, लेकिन हम तैयार हो रहे हैं। खुदावंद पाक रूह हमें तैयार कर रहा है, खूबसूरत बना रहा है। जो बाप को पसंद है, जो दूल्हे को पसंद है, वो पसंदीदा जो लज़ीज़ खाना है वो बना रहा है, वो तैयार कर रहा है, वो मुझे और आपको सिखा रहा है। क्योंकि बाप जो है जिस तरह हमने पीछे देखा कि टटोलता है, यानी जाँचता है, देखता है, परखता है। तो वो सब कुछ जो है वो खुदावंद पाक रूह मुझे और आपको सिखा रहा है। वो रोटी जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह है ना? और खाना खुदावंद यीशु मसीह है ना? तो वो हमें दे रहा है, वो हमें जो उसकी तालीम है, जो सच्ची तालीम है। याकूब जो है ये नया अहद या क्या बोलते हैं, इसहाक और याकूब है ना? ये नया अहद जो के हम लोग हैं, जो हमारे साथ खुदा ने वादे किए हैं, ये उनको पेश करता है ना? जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, है ना? जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, रोटी जो है उसको पेश करती है। वो हमें दे रहा है, वो हमें सिखा रहा है खुदावंद पाक रूह। इसलिए खुदावंद हमें पाक रूह तैयार कर रहा है, जिस तरह की रिबका ने तैयार किया। हमारे अंदर से, बाहर से हमें खूबसूरत जब बना रहा है, क्योंकि खुशबू तभी आती है जैसे हमने कल में बात की कि खूबसूरती, जिस्मानी खूबसूरती की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि हम रूह हैं। अब हम क्या है, रूहानी हैं। ये जिस्मानी इसराइल की बात हो रही है, लेकिन हम जो हैं रूहानी इसराइल हैं। इसलिए रूह की जो खूबसूरती है, जो हमारी अंदर की, यानी पुरानी इंसानियत, अगर हम वो हमारे अंदर है, तो अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है तो क्या आएगी? हमसे बदबू आएगी, क्योंकि गंदे हैं हम, नापाक है ना? लेकिन अगर हम अ,
खुदावन के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं तो हम पाक और साफ हो रहे हैं रोज रोज, है ना। इसलिए हमारे अंदर से किसकी खुशबू आएगी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को फूल भी कहा गया है, लिली का, है ना। तो खुदावन यीशु मसीह की हमारे अंदर से खुशबू आती है, जैसे जैसे हम उसको लेते जाते हैं अपनी जिंदगी में, अपने अंदर उसके उसका जो मिजाज है, उसका जो किरदार है, वो जो वो हलीमी है, वो मोहब्बत है हमारे अंदर, वो ईमान है हमारे अंदर, है ना। वो सारे जो उसके तौर तरीके हैं वो अगर हमारे अंदर हैं तो हमारे अंदर से खुशबू जो है, जिस तरह अस्तर मलका के ऊपर मसाले लगाए गए थे, वो दालचीनी और सारे वो जो मसाले थे, उसका तेल जो है वो लगाया जाता है। इसलिए तेल जो है जो मसा यानी तेल कब लगाया जाता है, जब हमें किसी काम के लिए चुना जाता है, वो काम करने के लिए मसा किया जाता है। तेल का मतलब है ऐसे ही नहीं तेल आ जाता वो आगे जो हमने काम करने होते हैं, जैसे दाऊद को मसा जब किया गया तो उसको बादशाही के लिए मसा किया गया था। इसी तरह जब आप अगर देखें कि हो जी मेरे ऊपर ऑयल जैसे विजन में देखते हैं या ख्वाब में, तो ऑयल का मतलब है कि खुदा ने हमें मसा किया है, अब काम कौन सा करना है वो भी खुदा ने आपको साथ बताया होगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जैसे ये थोड़ा ये जो ग्रुप जैसे पहले चलाने के लिए, तो खुदा ने जब मसा किया तो ये काम करने के लिए क्या कि ये वाला काम तू करना है, ते ईमानदारी ना करना है, जैसे भी, है ना। तो इसलिए जब मसा किया जाता है, जो वो ऑयल है वो किसी काम के लिए होता है। तो इसी तरह दुल्हन को या जब तैयार किया जा रहा था, उसके ऊपर तेल और मसाले वो लगाए जा रहे थे, तो उसको किसके लिए तैयार किया जा रहा था? बादशाही के लिए, दूल्हे के लिए, है ना। कि और हमने सीखा कि जो दुल्हन है उसने क्या करना है, जज करना है। इसलिए वो तैयार हो रही है कि अम, इसके ऊपर वो, इसलिए वो उसके ऊपर तेल और वो मसाले लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसने वो सच्चाई, कलाम की जो सच्चाइयां हैं उसके ऊपर अमल करना है। और फिर जब उसने जज करना है तो करवाना है। जब 1000 साल बादशाही होगी तो जो दुल्हन है खुदा यीशु मसीह के साथ बादशाही करेगी, वही यानी जज करेगी, काजी की तरह या अदालत जैसे होती है ना। तो उस वक्त जो दुल्हन है उसने खुदा यीशु मसीह के साथ बादशाही करनी है ना। इसलिए उसके ऊपर वो मसाले, वो तेल, इसीलिए हम सीखते आ रहे हैं शुरू से ही, जब से आ, ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है ना, कि हमने अपने आप को जज करना है। दुल्हन किसको तैयार करी, अपने आप को तैयार करेगा। या खुदा के खादम जो हैं, जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि अम, मैं ग्रंथियों, है ना, कि मुझे एक ही शौहर के साथ क्या तुम्हारी जो है वह निस्बत हुई है, और खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल उस दुल्हन को तैयार कर रहा है, इसलिए खुदा ने उसको मसा किया, है ना। तो इसी तरह वो जो खुशबू है, वो जो मसाले लगाए जा रहे हैं, वो जो तेल हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, वो असल में किस लिए, कि हमने काम करना है, हमने वो नेक और पाक काम करने हैं जिसके लिए जमीन पे भेजा गया। जैसे खुदा यीशु मसीह को अगर किसी को याद हो, मैं 53 बाब में है यसाया, कि उसने उसको मसा किया कि क्या करे। अगर किसी को याद है, सॉरी, क्योंकि अभी अभी आए हैं। अगर श्रेया किसी को याद है, क्या कह रहे हैं? कि खुदा यीशु मसीह को मसा किया गया किस लिए, कि वो ताकि मैं लोगों को आजाद करूं, हाँ अंधों को हाँ बनाई दूं। कहाँ पे है वो है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह को मसा किया गया, इसलिए हमें भी मसा किया गया कि हमने क्या करना है, वही काम करने हैं जो हमारे यीशु ने किए। मिल गई अगर आए तो पढ़ना। एक तो ये मिनट। तेल या तेल का हमें पता है कि उससे मसा किया जाता है, और मसा भी दो तरह से किया जाता था। एक जो खुदावन की तरफ से होता था, उसको वो सींग के साथ
तेल डाल के मसा किया, और किसी को कुप्पी में, जैसे जो साउल बादशाह था उसको कुप्पी क्या बोलते हैं, उसमें तेल डाल के मसा किया था। लेकिन जब दाऊद को मसा किया तो सींग में तेल डाल के, यानी खुदावंद की क्या लें मुकम्मल कामल मर्जी थी। जी पढ़ना। ओके। तो हमें भी खुदा ने माँ के पेट ही से चुना हुआ है, हम जो दुल्हन के तौर पे हैं, या खुदा यीशु मसीह के जो लोग हैं। वो यसाया 11 बाब में तो नहीं है श्रेया? हाँ जी, यसाया में भी है और यूहन्ना की इंजील में शायद। ओके ओके, चलो पढ़ना। हाँ जी, पढ़ेंगे। ओके चलो। यस। नहीं नहीं, जो आपको मिला वही पढ़ो, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके। इसलिए दुल्हन जो है उसको खुदावंद ने मसा किया है, वो तैयार हो रही है, और खुदावंद पाक रूह हमें तैयार कर रहा है। जिस तरह पे यहाँ हम देख रहे हैं कि रिबका जो है वो यकूब को तैयार कर रही है, इसी तरह मैं और आप तैयार हो रहे हैं। किसके लिए? बरकत पाने के लिए। हमारा इनाम क्या है? हमारा क्या कहते हैं, जैसे पालूस रसूल क्या कहता है, मैं दौड़ा जाता हूँ किस इनाम को? खुदावंद यीशु मसीह को। वो हमारा इनाम है, वो है हमारे अजर, हमारी मेरास। उसको हम, या उस तक पहुंचने के लिए, यानी आ, जो जगह उसने हमारे लिए तैयार की है उस तक जाने के लिए, जहां यीशु है वहां तक जाने के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और खुदावंद पाक रूह हमें तैयार कर रहा है। इसलिए खुदावंद बाप जो है वो आ, आ, जिस तरह कह लें कि याकूब जो है और इसहाक जो है, उसने बरकत जो है देनी है, या उसके पास लेके जाना है, या हम देखेंगे कि हमने स्टडी में सीखा था कि पहला फल जो है वो काहिन तक पहुंचा दिया जाता था, सरदार काहिन तक था। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जो पहला फल है वो खुदा बाप के पास पहुंचा दिया गया है ना। अब जो हम खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, उसको खुदा यीशु मसीह अपने बाप के पास लेके जाएगा। जिस तरह बरकत जो है, या पीछे हमने देखा कि रिबका को जब नौकर जो था उसने ना सिर्फ उसको तोहफे दिए, बल्कि वो किसकी तरफ से थे? बाप की तरफ से तोहफे थे। और अब जाके बाप ही के सामने दुल्हन को जो खुदा यीशु मसीह है वो अपने बाप के पास लेके जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें तैयार कर रहा है खुदावंद पाक रूह। और जिस तरह यहाँ पे रिबका जो है वो तैयार कर रही है, और खुदावंद भी उसको देखेगा, देख रहा है, टटोल रहा है, और खुदावंद पाक रूह भी उसको तैयार कर रहा है। इसलिए ये जो मुझे इसमें जो नजर आया, जो मेरे दिल को लगा, मैं वो आपको बता रही हूँ। उसके और भी जो मतलब हैं वो निकल सकते हैं। और यहाँ पे एक और हमें यकूब के बारे में जो पता चलता है कि उसने कहा, 20 आयत जो है कि यानी उसका ईमान देखें कि वो कह रहा है कि इसहाक के सामने जब गया, तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। यानी देखे उसका ईमान था। बेशक अभी उस यकूब का वैसा वाला रिलेशनशिप जो था खुदावंद के साथ वैसा वाला नहीं बना था, लेकिन उसको पता था कि ये मेरा काम कौन बना रहा है? खुदावंद बना रहा है। उसने कहा कि खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। यकूब ने इसहाक को यह जवाब दिया। तो इसलिए खुद जो यकूब था
अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इस चैप्टर तक अभी यकूब की और खुदा की जो है डायरेक्ट जो है पर्सनल जो वो है बातचीत जो है वो नहीं हुई, लेकिन यकूब का खुदा उनके साथ एक रिश्ता जो है वो, या उसका ईमान या उसका भरोसा जो है वो हमें इस आयत से पता चल रहा है कि वो कहता है कि जो तेरा खुदा है, अम, खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया, यानी उसको ईमान है खुदावंद के ऊपर, जो इसहाक का खुदा है, कि उसने कहा कि उसने मेरा काम जो है वो बना दिया। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि उसका ईमान है खुदावंद के ऊपर, जिंदा खुदा के ऊपर, कि जो कुछ इसहाक के साथ खुदा ने वादे किए हैं वो आ, वो पूरे होंगे। इसलिए वो अ, अभी उसको फुली जो है पता नहीं है, लेकिन वो उसका ईमान है कि मेरा काम जो है वो खुदा ने ही बनाया है, और खुदा ने ही रिबका को पहले तैयार किया, कि उसने ये प्लान बनाया। बेशक उसको भी पता था कि खुदावन ने कर दिया, ब्लेस तो उसको कर दिया, बरकत उसको दे दी हुई है खुदावन ने, लेकिन जिस्मानी तौर पे फिर भी जो रिबका थी उसने अपनी तरफ से जो बाप से बरकत थी लेनी, उसने उसको उसको भी ज़रूरी समझा। यानी जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे दोनों तरह से उसने कोशिश की कि खुदा बाप ने तो इसको मसा कर दिया हुआ है, अब जो बाप है, जो जिस्मानी बाप है ज़मीन पे, वो भी इसको मसा जो है वो कर दे, याकूब को मसा करे, है ना? तो ये रिबका ने पूरा जैसे कह लें उसमें उसका साथ दिया, पूरा जो प्लान है वो उसने बनाया, और खुदावंद ने उसको कामयाब किया। जिस तरह याकूब कह रहा है कि खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम जो है वो बना दिया, है ना? इसी तरह और खुदावंद के बंदा फिर इसहाक ने याकूब को जो है वो मसा किया, याकूब को जो है वो बरकत जो है, या जो वादे थे खुदा ने इसहाक के साथ किए, वो सारे वादे कह लें उसने अपने बेटे के याकूब के साथ जैसे कह लें ट्रांसफर कर दिए, या उसके ऊपर या उसको दे दिए कि खुदावंद जो है मेरा खुदा, और यानी जो मेरे खुदा ने मेरे साथ वादे किए हैं वो तेरी जिंदगी में पूरे हों, यानी मेरी नस्ल में ट्रांसफर हो जाए, है ना? तो ये इसहाक ने याकूब को जो है वो बरकत दी, और उसको उसमें से महक आई अपने बेटे की, जिस तरह हम जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, है ना? इसलिए ये अम, इसहाक में इसहाक की इसमें कोई जैसे कहने कोई मर्जी नहीं थी, उसको नहीं था पता। रिबका जो थी उसने अपने प्लान बनाए, लेकिन ये सारा प्लान खुदावंद की तरफ से कह लें हुआ, और उसने होने दिया। रिबका ने जो भी किया, याकूब ने जो भी किया, खुदावंद ने होने दिया। इसमें एक जो बात है जो अम, रिबका ने कही कि जो अगर लानत हो तो वो मेरे ऊपर आए। तो उस वक्त मतलब अगर हम बाइबल को पढ़ें तो जो इसराइली हैं वो बार बार ये जो लानतें होती थी वो अपने ऊपर ले लेते थे। और ये नए अहदनामे में भी हम देखेंगे, एक आयत पढ़ते हैं, और एक वैसे काफी जगह है, लेकिन एक जगह हम पढ़ेंगे, पहला सामुएल 25 बाब और उसकी 24 आयत अंजना पढ़ना। उसमें जो नाबेल था, शायद अगर आपको स्टोरी याद हो, और के उसने दाऊद ने उससे मदद मांगी थी खाने के लिए, अपने जो जवान थे उनके लिए मांगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। तो जो दाऊद था वो एक किस्म का कह लें लड़ाई के लिए, जंग के लिए जाने लगा। अंजना मिला पहला सामुएल 25 बाब हाँ उसकी जी 24 आयत पढ़ना। तो उसमें जो जी उसकी बीवी थी नाबेल की, वो आई, वो खाना अपने गधों पे डाल के ले आई, और उसने उस जो लड़ाई या मारने के लिए, हमला करने के लिए दाऊद जाने लगा था, उसने उसको रोक लिया, और उसने वो जो बात कही कि उन उस जी जी पढ़ना। हम्म, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ।
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਾਬਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲਣ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਠਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹੂ ਵਗਾਉਣੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਲੋਚਦੇ ਹਨ नाबल वर्गे हों। हाँ जी, तो उसने क्या कहा 24 आयत में, और वो उसके पांव पर गिर कर कहने लगी, मुझ पर ए मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो। यानी उसने गुनाह जो था वो अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरह और भी बहुत सी हवाले हमें मिलते हैं जिसमें क्या किया, जो लोग थे इस्राएली, वो अपने ऊपर लानत को या उस गुनाह को ले लेते थे। एक और हवाला निकालना, मत्ती 27 बाब उसकी 25 आयत में, जब इस्राएलियों ने जब यहूदियों ने खुदाम यीशु मसीह को जब सलीब चढ़ाने लगे थे, तो तब भी इन्होंने क्या कहा कि इसका खून हमारे ऊपर, हमारी औलाद के ऊपर। जी अंजना पढ़ना। मत्ती चैप्टर 27 उसकी 25 वर्स। जी। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। हाँ जी, तो ये हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि बहुत सारे जो जगह पे ऐसे होता था कि वो अपने ऊपर वो गुनाह या अपने ऊपर वो लानत जो है वो ले लेते थे। जिस तरह जब ये खुदा यीशु मसीह को सलीब चढ़ाने लगे तो उन्होंने अपने मुंह से ही कहा, है ना, ये जैसे गुनाह था या खून जो था वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ये हमारी और हमारी औलाद के ऊपर। तो जिस तरह रिबका ने कहा कि याकूब ने कहा कि अगर बाप को पता चल जाए, है ना, तो वो दुआ बरकत देने की बजाय मुझ पे लानत ना कर दे। तो रिबका ने कहा कि नहीं, जो तेरी लानत है वो मुझ पर आ जाए, है ना। इसलिए अब हम जब मसीह में आ जाते हैं, हमें ये सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि हमारा सब कुछ खुदाम यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाह भी, हमारी लानतें भी। इसलिए हम अब जो हैं नए अहदनामे के मसीही, हमने अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। कभी जैसे माएँ कह देती हैं ना, ओ दिया साडे उत्ते आ जाए, या उसका गुनाह मेरे ऊपर आ जाए, या उसकी बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, हम बड़ा ऐसे इमोशनल होके, जज्बाती होके कह देती हैं। नहीं, हम जो नए अहदनामे के मसीही हैं हमें ये सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना। लेकिन तब ऐसे होता था, तो इसलिए रिबका ने भी यहाँ पे कहा कि अगर वो लानत करे तो वो मेरे ऊपर आ जाए, है ना। तो लेकिन अब हमें, जो हम मसीही हैं, हमें ये सब नहीं करना। और यहाँ पे जो असौ का जो एक किरदार है मिलता है, वो रो रहा है, बरकत इसहाक याकूब को दे दी है खुदा इसहाक ने, है ना, लेकिन वो अब रो रहा है। तो देखें कि उसने तो पहले ही अगर हम देखें कि उसने तो पहले ये हक बेच दिया था सरदार होने का, और हमने पीछे देखा पलोठे का हक उसने पहले ही बेच दिया था। तो अब वो बरकत कहाँ से, इसलिए अब तो मिल नहीं सकती थी क्योंकि उसने बेच दी थी, है ना। और इसीलिए ये खुदावन ने होने दिया, क्योंकि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि उसको इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी नजर में पलोठे होने की, है ना। इसलिए उसने उसको पहले ही बेच दिया। लेकिन अब वो रो रहा है, अब वो पछता रहा है, या अब वो कर रहा है। तो एक हवाला हमें इब्रानियों 12 बाब उसकी 16-17 आयत में पढ़ना कि वो अब उसको मिल नहीं सकती थी। अब वो समझे कि वो बेदीन था, वो किस में शामिल हो गया था। पढ़ना इब्रानियों 12 बाब 16-17 बस। इसलिए जब बेच दी है, अब उसका क्या लें, तो अब ये हो नहीं सकता। हाँ जी पढ़ो। ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰ ਅਥਵਾ ਏਸਾਓ ਵਾਂਗੂ ਕੁਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो वो अब बेदीनों में शामिल हो गया था, और लिखा है, और ना कोई हरामकार या सो की तरह बेदीन, जिसने एक वक्त के खाने के लिए, इसलिए ये खाना जो है हमने देखा कि ये, इसको हम आम ना समझे, ये खाना रूहानी तौर पे जैसे कह लें खुदावंद की जो कलाम की सच्चाइयां हैं उसको पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह खुद खाना है, या खुदावंद यीशु मसीह या बाप की जो कामिल मर्जी है, खाना वो है ना। उसकी रूहानी, उसने रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से अपने जो पलोठे होने का हक जो था वो बेच दिया था। और हम ने उस दिन सीखा था कि जिस्मानी तौर पे भी हम क्या करते हैं, खाने के पीछे दुआ छोड़ देते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जो हमें नहीं खाना चाहिए ऐसी ऐसी चीजें हम खाते हैं ऐसे ऐसे। और फिर इसलिए ये खाना जो है एक छोटी चीज नहीं है, रोटी और जैसे वो हवा ने फल खाया था और उसकी वजह से वो बहकते ही गुमराह हो गई, है ना, पीछे हट गई, गिर गई, रूहानी तौर पे उस वक्त क्या हो गया था, वो मर गई थी, है ना। इसलिए ये खाना जो है ये बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है ना। तो वो रूहानी तौर पे मर गई थी, जिस तरह सो ने जब ये किया, उसने पलोठे का हक बेच दिया एक खाने के लिए, वो मसूर की दाल के लिए, तो उसने रूहानी तौर पे भी वो क्या था, मुर्दा हो गया था, तो वो बेदीन हो गया, कोई ईमान नहीं था खुदाम के साथ। और फिर आगे हमने ये पढ़ेंगे भी कि उसने हत्ती औरतों के साथ यानी गैर कौमों की औरतों के साथ उसने शादी जो है वो कर ली थी, है ना। लेकिन फिर भी इसहाक ने उसको जो है वो बरकत जो है दी, और उसने कहा कि तू भाई की जो कि सरदार बन गया था याकूब, और उसकी खिदमत करेगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पे होगा, है ना। और ये बाद में इसका जो जुआ है, अगर हम पढ़े दूसरा सलातीन 8:20-22 आयत में लिखा है कि ये खत्म उसने कर दिया था, बादशाह जो था उन्होंने अपना चुन लिया था, लेकिन हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते। तो आगे जो याकूब जो था, जब उसकी रिबका ने उसको शादी के लिए अपने जो भाई था उसके पास भेज दिया, लाबन के पास, है ना। और इससे हम देखते हैं कि जब इसहाक की बारी थी तो इब्राहिम ने मना किया था अपने नौकर को कि साफ साफ तू ना यानी इसहाक को वहां पे ना लेके जाना, अगर वो औरत आना चाहे यानी उसकी बीवी यहाँ पे आना चाहे तो ठीक है, लेकिन तू ना उसको लेके जाना, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिबका जो है वो खुद उसको भेज रही है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको अपने खुदा यीशु मसीह के साथ देखें तो खुदा यीशु मसीह जमीन पे आए, यानी इस, और यहाँ पे आके उसने एक जिस तरह याकूब ने आगे चैप्टर में चल के हम पढ़ेंगे कि उसने जाके वहां पे क्या की थी, मजदूरी की थी, खादम बन गया था, नौकर बन गया था अपनी बीवी के लिए। उसने 14 साल यानी 7 साल लिया के लिए, 7 साल राखल के लिए लाबन की खिदमत की थी, यानी नौकर बन गया था। इसी तरह अगर हम इसको अपने खुदाम यीशु मसीह के साथ देखें तो खुदाम यीशु मसीह जमीन पे आए और अपनी बीवी के लिए उसने यहाँ पे क्या बना, खादम बना, जान दी, और वो सब कुछ जो था हमें बचाने के लिए उसने किया। और फिर वो वापस जो है वो हमें वहां पे अपने साथ आसमान पे ले जाएगा, जिस तरह यकूब जो था उसने वहां पे खिदमत की, वहां पे जो अपनी बीवी थी, बीवियां थी, उनको लेके वापस वो फिर
उसी जगह पे आएगा, जो उसकी जगह है, जो बाप इब्राहिम ने जो जगह तैयार की थी, या जो मुल्क कनान था, वो वापस जो है वो उस जगह पे आ जाएगा। तो अगर हम इसको भी रिलेट करें तो उस तरह याकूब जो है वो अपनी बीवी को लेके वापस जो था उसी जगह पे आ गया था, और वहां पे उसने रखा था लिया जो थी, यानी मुल्क कनान में वो आ गए थे। तो इस तरह कह लें जो 27 बाप है, जो बरकत है वो याकूब ने ली इसहाक से। लेकिन यहाँ पे जो मेरे दिल को जो टच किया, रिबका का रोल था कि रिबका ने बड़ी ही समझदारी से और खुदावंद की कह लें हिकमत से, अक्लमंदी से, और उसके डर और खौफ में रहती है, क्योंकि उसको वादा याद था कि नहीं, ये बरकत जो है याकूब की है। या कल हमने जैसे बात की कि माँ को एक पता होता है कि मेरे बच्चे के अंदर कौन सा मेरा बच्चा है जिसमें कह लें एक वो वाली खूबियां हैं, या खुदावंद का डर और खौफ है ना। तो उसकी जो पूरी कोशिश थी जिस्मानी तौर पे कह लें या रूहानी तौर पे भी वो थी कि बरकत जो है वो याकूब को मिले, वो इसका हकदार है। सौ जो है उसके किरदार को हम देखते हैं ना, कि वो अगर एक सरदार बनता तो कैसी उसकी वो फैसले होने थे, है ना। तो इसलिए खुदावंद की दुल्हन जो है उसका जो किरदार है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो मिजाज है, जैसे हमने यकूब का पीछे पढ़ा कि उसका मिजाज क्या था, सादा था, या हम कहेंगे ठंडा था, या इस तरह मिजाज था, या नरम मिजाज था। तो इसलिए ये जो खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन के तौर पे चुने गए लोग हैं, वो उनका मिजाज, उनका किरदार, उनके रवैये, या वो पाक साहब या खुदाम के साथ उनका रिश्ता जो है वो इस तरह का होना चाहिए, जैसा कि सो का नहीं था। सो क्या था, जल्दबाज था, और मरा जा रहा था खाने के लिए, है ना। और उसको कोई वैल्यू नहीं थी। जो रूहानी नेमतें हैं, या रूहानी जो चीजें हैं, या रूहानी जो बरकतें हैं, उसकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। इसलिए ऐसा सरदार जो है, या ऐसे अगर जज बन जाए, क्योंकि उसने जज बनना था या सरदार बनना था, और रिबका जो थी उसको पता था कि ये नहीं, याकूब होना चाहिए, असौ नहीं, याकूब होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह पाक रूह जो है मुझे और आपको टटोल टटोल के, जायजा ले ले के, एक एक चीज जो है वो जो नहीं चाहिए, जो कह लें खुदावंद को पसंद नहीं है, वो हमारे अंदर से निकाल रहा है और हमें उस तरह बना रहा है जो हमारे खुदावंद को पसंद है, जो बाप को पसंद है, या हमारे दूल्हे को पसंद है। इसलिए खुदावंद पाक रूह को, जिस तरह याकूब ने रिबका ने उसको एक एक किस्म का कहा, हुक्म दिया कि तू मेरी बात मान। इसी तरह हम पाक रूह की अगर बात मानेंगे तो उस पाक दामन कमवारी की मानिंद हम तैयार हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को सुपुर्द कर दें खुदावंद पाक रूह के। वो ही हमें तैयार कर सकता है। उसको सब पता है कि क्या क्या हमारे बाप को पसंद है। तो इसलिए खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे, हमारे अंदर से भी वो खुशबू आए, वो लिबास हम पहने, वो जैसा खाना यानी जो कलाम है हमारे दूल्हे को पसंद है, वैसा हम करें। तो गॉड ब्लेस यू।